सो फ्रेंड्स, डराने के लिए डरा रहे हैं। इतनी सारी सेक्शंस है, इतनी सारी रूल्स है। सेक्शन 54, 55, 56, 57, 58 यहाँ खत्म नहीं हो रही है। 89 से लेकर 97 ए तक इनकी रूल्स है। तो 95 के बाद 95 ए भी इंसर्टेड है, 96 के बाद 96 ए, 96 बी इंसर्टेड है, 97 के बाद 97 ए इंसर्टेड है। यहाँ भी खत्म नहीं हो रही है। यू हैव टू ऑल्सो गो एंड रेफर section 33, 57, 49, 39, 77 to get the exact ambit of the refunds, right? So it's really very interesting कि कितना टफ होता है और कितने मैटर कॉम्प्लेक्स है जिसको अपने को इजी करना है, right? So let's move together. I'm sure कि by end of this session refund is not a matter of concern for all of us, right? For all of us. So these are the basic forms which we might require when we go practically to file refunds. So RFD 01 is the application form. RFD 02 is the acknowledgement received by the department. 3 is again a deficiency memo which is communicated by the department. 4 is a provisional order which is again communicated by the department. Payment order 5. 6 is a refund order or a rejection order. 7 is again an order of complete adjustment. We can go till end and we will discuss this as and when we discuss the related provision, right? So one window it is prepared for you. So friends, who can apply refund? Let's come and talk this way. Who can file returns? Who can file returns under GST? A person who is registered or a person who is not registered can also file a return. Can a person who is not registered under GST can file a refund under can file a return under GST? जो आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, क्या वो जीएसटी में रिटर्न लगा सकता है? ओके, सो अगर सो जो आदमी रजिस्टर्ड ही नहीं है वो रिटर्न लगा नहीं सकता, बट जो आदमी रजिस्टर्ड ही नहीं है वो रिफंड फाइल कर सकता है, राइट? सो इट इज सेड दैट एनी पर्सन, कोई भी, डजंट मैटर रजिस्टर्ड, डजंट मैटर नॉन रजिस्टर्ड, हु हैज पेड टैक्स and interest, paid on such tax or any other amount can apply for claim of refund of such tax interest if any. The term any person opens refund arena to that person who has borne the incidence of tax. It means it might be कि मैंने टैक्स आपको पेमेंट किया है, right? And I'm not a registered person. I can also go and claim a refund, right? We will see how, right? So refund is not defined under section 2. हमारी जो डेफिनेशन की सेक्शन है सेक्शन 2, उसमें रिफंड्स डिफाइंड नहीं है. सो रिफंड्स कहाँ डिफाइंड है? एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 54. एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 54, वहां क्या बोला गया कि रिफंड अगेन इंक्लूसिव डेफिनेशन है. रिफंड इंक्लूड्स व्हाट? रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ. जीरो रेटेड अपने बात कर चुके हैं. इट इज एक्सपोर्ट्स प्लस सप्लाईज टू SEZ. Refunds includes refund of tax paid on inputs or input service used in making such zero rated supplies. Okay. Refund of tax on supply of goods regarded as deemed export. ये क्या है बात कर लेंगे. Refund or unutilized input tax credit as provided in subsection 3. So जो भी मेरी unutilized credit है उसकी भी मैं refund ले सकता हूँ as provided in subsection 3, that is 54 subsection 3. We will discuss. So let's go to the constitution again. जो अपने फर्स्ट डे गए थे अपने वापस जा रहे constitution में. Article 265 of the constitution says taxes not to be imposed save by authority of law. No tax shall be levied or collected except by authority of law. So it means कि जब गवर्नमेंट ने ही बोल दिया कि मुझे टैक्स कलेक्ट नहीं करना, तो स्टैट्यूट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, उसको वो वापस करना पड़ेगा. सो दिस इज द रीजन
This is the reason where the SSC get the refund of any particular tax. So गवर्नमेंट बोला कि मुझे एक्सपोर्ट प्रमोट करना है, एंड तो आप एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगा है वो मुझे रिम्बर्स ले लीजिए, वो मुझे रिफंड ले लीजिए. Since it is written, it is intent of the government, a statute is correcting tax, so they have to refund us back. So the whole concept of refund is getting coming from Article 265, right? Let's move forward. Okay, so refund क्या चीज का हो सकता है? Refund tax का हो सकता है, CGST, SGST, IGST, UTGST. इंटरेस्ट का हो सकता है, एनी अदर अमाउंट का हो सकता है. व्हाट इज एनी अदर अमाउंट? पेनल्टी, फीस, फाइन. सो रिफंड इन सब चीजों का हो सकता है. कोई भी टैक्स जो आप जीएसटी में पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट आप जीएसटी में पेमेंट कर रहे हो, एंड पेनल्टी, फीस और फाइन, ये भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो. ये भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, राइट? ओके, अब यहां से बहुत आस्ते चलेंगे बिकॉज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट एनी पर्सन कैन क्लेम अ रिफंड. जो मैंने बताया कि कोई भी आदमी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है वो भी आके रिफंड्स क्लेम कर सकता है. सो एनी पर्सन कैन क्लेम अ रिफंड ऑफ व्हाट? टैक्सेस पेड, इंटरेस्ट पेड, एनी अदर अमाउंट, जो हमने बात किया अभी प्रीवियस स्लाइड में, राइट? So taxes paid, interest paid, any other amount, वो तीनों का रिफंड क्लेम कर सकता है. ओवर. ओके, रजिस्टर्ड पर्सन, आई बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन, मैं और क्या कर सकता हूं? एक्सेस कैश इन ई कैश लेजर, एक्सेस ITC in e-credit ledger. Friends, now I believe after the discussion of accounts and records, it is very pertinent that what does this cash ledger and credit ledger creates importance, right? तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेजर है हमारे लाइफ में आज के दिन. सो अगर हमारे कैश लेजर में कोई एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है या हमारे क्रेडिट लेजर में कोई एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है, तो हम उसका रिफंड ले सकते हैं. पर्टिकुलरली फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आप रिफंड सिर्फ 2 ही स्टेट में ले सकते हो. नंबर 1, it is a case of zero rated supply. Number 2, inverted rate structure का status है. We'll discuss. So मैं बोल रहा हूँ कि कैश लेजर में अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है आप जाकर रिफंड ले लो. क्रेडिट लेजर में अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है तो आप रिफंड ले लो, प्रोवाइडेड आप जीरो रेटेड सप्लाई किए हो और उस कारण से आपके क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा हुआ है, और यू आर सप्लाइंग अ प्रोडक्ट which is falling, the transaction of which is falling under inverted duty structure. अगर ये दो केस है और इसके चक्कर में आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है, you can easily go and claim a refund, right? Coming to the third provision, which we'll discuss here only because आगे इतना relevance रखेगा नहीं, at least अपने general practice के लिए. So person notified under section 55, read with rule 95 and read with rule 95A, right? क्या बोलता है ये? UNO, Financial Institutions Organization, UN Privilege and Immunities Act, Consulate and Embassy, ये तीनों के बारे में बात किया गया. नोटिफिकेशन नंबर 16/2017 डेटेड 28 जून 2017. ये भी रिफंड फाइल कर सकती है जो भी इन्होंने परचेज किया या जो भी हमारा जीएसटी कंपोनेंट ने पेमेंट किया. रिटेल आउटलेट बियॉन्ड द इमिग्रेशन जो हमारे एयरपोर्ट्स में होती है, ये रिफंड फाइल कर सकती है एज पर नोटिफिकेशन लेवल में 19. एंड कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन है 6/17. ये 3 जो चीजें हैं ये अपने अपने रिफंड्स इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आराम से फाइल कर सकती है. तो पूरी रिफंड का मैंने अगर 3 भाग में डिवाइड कर दिया, एनी पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन और पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 55, इन 3 के पीछे आज अपने एक एक करके टच करेंगे. ओके, सो लेट्स सी. अब हम जा रहे हैं कि हमें एक रिफंड क्या चीज का मिल सकता है. टैक्सेस पेड, हम अपने पॉकेट से टैक्स पे कर दिए हैं, हम उसका रिफंड मांग सकते हैं. आईटीसी, हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमारे पास है जिसका हमने पेमेंट कर दिया था प्रोक्योरमेंट के टाइम में, हम उसका रिफंड मांग सकते हैं. एंड अदर्स.
फ्रेंड्स प्लीज समझे मैंने क्यों किया है, इस तरीके से क्यों दिखाया है। मैं अभिषेक माल खरीद रहा हूं, सामान खरीद रहा हूं 100 रुपए प्लस 18 रुपया जीएसटी। मैं इसको बेच रहा हूं 200 रुपए प्लस 36 रुपये जीएसटी। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में मैंने 100 रुपया पे जब माल खरीदा मैंने अपने वेंडर से, तो आई हैव पेड हिम 118 रुपीज, एंड when I have exported it, or when I have given it, I have paid 36 rupees गवर्नमेंट को। मैंने 36 रुपये गवर्नमेंट को पेमेंट किया है। सो अब टैक्सेस पेड में जब मैं बात करूंगा तो मैं ये वाली लेग का बात करूंगा 36 रुपीज का। जब मैं आईटीसी का बात करूंगा तो मैं 18 रुपए का बात करूंगा, राइट। व्हेन आई एम प्रोक्योरिंग आई एम हैविंग आईटीसी, व्हेन आई एम सप्लाइंग आई हैव टू पे गवर्नमेंट द आउटपुट टैक्स, दैट इज टैक्स पेड, राइट। तो अपने उसके बारे में बात करेंगे एंड अदर्स। सो लेट्स गिव टाइम टू दिस स्लाइड, पर्टिकुलरली दिस स्लाइड। सो टैक्सेस पेड, एक्सपोर्ट विद पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। मैं एक्सपोर्ट करता हूं, मैंने एक्सपोर्ट किया और मैंने किया विद पेमेंट ऑफ टैक्स। इसका मतलब क्या होता है कि लेट्स से आपने अभिषेक से माल खरीदा कोलकाता में, मैं अभिषेक है, आप बैठे हुए मुंबई में। आपने बोला अभिषेक सेंड मी प्रोडक्ट्स, आई हैव सेंड यू प्रोडक्ट 1000 रुपीज प्लस जीएसटी 18%, 1800 का टैक्स। सो सॉरी 1180 रुपया टैक्स, तो 180 रुपया टैक्स, तो 1180 हो गया। अब आप उस 1000 रुपये का प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं 2000 रुपया में, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो यूएस में। तो यूएस वाला बोलता है बॉस आपके इंडिया का टैक्स आपको मुबारक, सेम ये प्राइस विच आई हैव टू पे यू, आई विल कंपेयर विद ऑल द कंपेटिटर्स। सो यू सेड कि नहीं यूएस वाले भैया 2000 रुपये में मुझे ये आपको बेचना है। If I send this goods to you, I want 2000 rupees or XYZ dollars from you. End of discussion. He is not going to pay you any Indian tax separately. So 2000 रुपया में आप समझ लो बेचे हो, तो 1000 रुपया में आप खरीदे अभिषेक से, आपने बेचा 2000 में। आप गवर्नमेंट को बोलते हो कि भैया ये तो फर्स्ट क्लास में बताया गया था कि ये इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। सो इंटर से सप्लाई माना जाएगा तो मुझे आईजीएसटी पे करनी है, और आईजीएसटी मैं कलेक्ट करूं किससे? आज फॉरवर्ड चार्ज में हम तो कस्टमर से पैसा लेते हैं और गवर्नमेंट को जमा करते हैं। यहां तो सामने वाला मुझे देगा नहीं पैसा, सो वो 2000 देगा, उसमें मैं अगर 360 रुपीज टैक्स पेमेंट कर दूं तो ये तो मेरा कॉस्ट बढ़ जा रहा है। सो गवर्नमेंट से नो, पे इट फ्रॉम योर पॉकेट एंड देन क्लेम रिफंड, पे इट फ्रॉम योर पॉकेट एंड देन क्लेम रिफंड। सो आपको बोला गया कि भैया अगर आप गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, देन पे इट फ्रॉम योर पॉकेट एंड देन क्लेम अ रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो हम टैक्स पेड में बात करेंगे एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ गुड्स, विथ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आई गेस आई एम क्लियर, राइट? आई गेस आई एम क्लियर। if you have any issues now, stop me here only, because ये सारे स्लाइड्स बाद की स्लाइड से कनेक्टेड है। तो अभी मैं बहुत बेसिक समझा रहा हूँ, बाद में मैं रिफंड्स के प्रोविजंस को मल्टीप्लाई करना चालू करूंगा, राइट। सेकंड इज SEZ सप्लाईज टू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सो SEZ supplies to of goods and service. It's a request, whenever you type something on chat box, type it completely. If you type in one word or 5 word or 2 word and 3 word, I have to wait what you are typing and the flow gets break, right? I am allowing questions because I want to ensure that you are getting the concept, right? So अगर आप 2 वर्ड 3 वर्ड लिख के क्वेरी लिखोगे 3 4 5 7 चैट लाइन में, तो फ्लो टूट जाती है, मुझे रुकना पड़ता है कि आप क्या लिख रहे हो, तो वो थोड़ा सा काइंडली ध्यान रखें। So the paid GST, how can you find input? How can you find input GST claimable? मैम मैं अभी रिफंड चालू ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी खाली बेसिक प्रोविजन बता रहा हूँ कि आप एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हो, फिर आई विल कनेक्ट विद द रिफंड्स, राइट? ओके, सो SEZ सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आपने SEZ यूनिट को गुड्स या सर्विस बेचा, तो दिस इज ऑल्सो कमिंग टू अ जीरो रेटेड सप्लाई, तो इसमें भी आपका जो टैक्स का पेमेंट हो रहा है आप रिफंड ले सकते हो। डीम्ड एक्सपोर्ट,
सो डीम्ड एक्सपोर्ट, अगर आप, मैं यहीं पर कनेक्ट करा रहा हूँ, डीम्ड एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हो एज अ सप्लायर, यू हैव टू पे टैक्स एंड यू हैव टू क्लेम रिफंड। अगर आप नीचे आओ, आईटीसी में लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है डीम्ड एक्सपोर्ट्स रिसिपेंट। So there can be a scenario where the recipient of the goods or service are claiming the refund, So deemed export is a particular set of transactions. We'll discuss. तो उसमें दोनों supplier और recipient, दोनों, either of the one can claim refund. If the supplier wants to claim the refund, he have to claim the refund of the taxes paid. If the recipient wants to claim the refund, he have to claim the refund of the ITC, right? फोर्थ पॉइंट, रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्सेस। मेरे बंदे ने आईजीएसटी में 1000 रुपए टैक्स पे करने के बदले सीजीएसटी एसजीएसटी में टैक्स पे कर दिया। आप बोलोगे अब तो आ गया पीएमटी 09, सेट ऑफ कर लो। सर सेट ऑफ क्या कर लूं, मेरा तो कभी टैक्स पेबल आता ही नहीं है। ठीक है भैया, जाकर रिफंड क्लेम कर लो। तो रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आईजीएसटी का सीजीएसटी एसजीएसटी मैंने टैक्स पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट इज एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस। दिस इज डिफरेंट। दिस इज, लेट्स से आईजीएसटी में आपका 1000 रुपया लाइबिलिटी आया था, आपने एक इनवॉइस बनाया आज 13 जून को, और आपका माल जा रहा है 4 जुलाई को, पर आपने इनवॉइस बनाया 13 जून को। सो 13 जून के अकॉर्डिंग आपने जब जून का रिटर्न जीएसटी अमाउंट में भरा और 3 में पेमेंट कर दी, कोई बात नहीं, आपका पेमेंट हो गया। कोई कारण से आपका अकाउंटेंट ने देखा कि 4 जुलाई को वापस माल जा रहा है, तो उसने वापस टैक्स पेमेंट कर दिया। सो एक्चुअल में आपके बुक्स में टर्नओवर में एक ही बार है 100 रुपए, बट आपके 3B में वो 100 रुपए 2 बार चला गया कोई भी कारण से, और 2 बार उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट भी हो गया, सेट ऑफ भी हो गया। सो दिस इज एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इसकी भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, राइट। कमिंग टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में एक्सपोर्ट्स अंडर एलयूटी, अगर मैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देके एक्सपोर्ट करता हूँ गुड्स या सर्विस, तो अपने एग्जांपल में क्या होगा कि अभिषेक ने बंगाल से 1000 रुपया में 1000 रुपये में माल भेजा, वो 1000 रुपये का माल भेजा एंड वो चार्ज किया लेट्स से सीजीएसटी आईजीएसटी, क्योंकि वो मुंबई भेज रहा है, तो 1000 रुपया में आईजीएसटी चार्ज किया। नाउ you being a person in Mumbai exporting goods, first go and in the through the common portal आपने एलयूटी निकाल लिया और अपने एक्सपोर्ट इनवॉइस में लिखा एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी और एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आपकी शिपिंग बिल जो बनेगी एक्सपोर्ट्स की, उसमें भी लिखा रहेगा एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। एक्सपोर्ट सारा होने के बाद जब आप जीएसटी 1 और 3B भरोगे, तो आपको एक्सपोर्ट्स के उस कॉलम में भरना है जहां पर टैक्सेस पे नहीं करना है। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने अभिषेक से खरीदा 1000 रुपया प्लस 180 रुपया, 1180 रुपया पेमेंट करके, आपने यूएस वाले को माल बेचा 2000 में, आपको 360 रुपया कुछ पे करने का दरकार नहीं हुआ पॉकेट से। गवर्नमेंट बोलेगी कि जो आप, क्योंकि आपने अल्टीमेटली एक्सपोर्ट किया है, तो अभिषेक को जो आपने 180 रुपया दिया था प्रोक्योर करने के टाइम में, उस 180 रुपया का आप मेरे से, गवर्नमेंट से रिफंड ले लो, उस 180 रुपया का गवर्नमेंट से रिफंड ले लो। तो एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी ऑफ गुड्स और सर्विस। सिमिलरली एसईजे सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विस अंडर एलयूटी। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई गेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एंटायर सेशन इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या होता है, खाली ये बस ब्रीफ समझा रहा हूं, फिर मेन स्लाइड में जाएंगे। जहां पर हमारा प्रोक्योरमेंट का रेट, हमारे परचेज का जीएसटी रेट इज हायर देन हमारे आउटपुट का रेट। तो लेट्स से आई माइट परचेज a machine, a plant and machinery, a scanner or a printer or a laptop, which might, it is not, but which might have a GST rate of 28%. And I might have sold, I might have sold a good, a chair, a table, or might be my chartered accountant services at the rate of 18%. तो दिस इज अ स्ट्रक्चर जहां प्रोक्योरमेंट की रेट हाई है एंड आउटपुट की रेट जीएसटी रेट कम है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर जहां पर मेरे क्रेडिट लेजर में इस फैक्ट्स के कारण मेरे क्रेडिट लेजर में हमेशा
हमेशा क्रेडिट पड़ा हुआ रहेगा. So government is giving a privilege. You can claim a refund out of it. There are a lot of confusion and mess on this. We'll discuss. We'll discuss. And the next what I have discussed. Others, excess amount payment in cash ledger. Excess amount paid in cash ledger. मैंने कैश लेजर में जबरदस्ती एक्स्ट्रा पैसा देके रखा है कि भैया आने वाला ट्रांजैक्शन होने वाला है, मुझे टैक्स का पेमेंट करना है, मैंने दे दिया. अब मैं सोचा कि ट्रांजैक्शन होगा नहीं, पैसे वापस मंगवा लो. ठीक है. ऑन अकाउंट ऑफ अपील्स एंड असेसमेंट. अपील असेसमेंट के कारण मैंने 15% 20% जो भी मुझे टैक्स पेमेंट करना था मैंने ऑन अकाउंट करवा दिया. अब वो कैश लेजर में पड़ा हुआ केस में जीत गया. आई हैव टू क्लेम रिफंड आउट ऑफ इट. एंड अदर हो गया, एनी अदर है. एंड एनी अदर कोई भी गवर्नमेंट नोटिफाई करता है तो उसका मुझे रिफंड मिलेगा. फ्रेंड्स प्लीज कीप अ नोट दैट मैंने ऊपर फर्स्ट लाइन में एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस में जी में स्टार लगाया है. स्टार क्या बोल रहा है? फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस. Exports of goods, not service. Exports of goods with payment of taxes. This shipping bill itself is considered as a refund application. And for all other, you have to file RFD-01. क्या मतलब है? जब आप एक्सपोर्ट करते हो विथ पेमेंट ऑफ टैक्स तो गवर्नमेंट बोलता है आपको, आपने 300, अपने हमारे एग्जांपल में अभिषेक ने आपको माल बेचा 1000 रुपया, 180 रुपया जीएसटी, आपने माल बेच दिया 2000 रुपया में. विथ पेमेंट ऑफ टैक्स में 2000 का 360 रुपया जो होता है आउटपुट टैक्स आपने अपने पॉकेट से पेमेंट कर दिया. अब आपको अल्टीमेटली आपको अब जो 360 आपने जो पेमेंट किया, व्हेन यू वे पेइंग 360 रुपीज, यू कैन इजीली सेट ऑफ 180 पेड टू अभिषेक. सो लेट्स से यू डोंट हैव एनी अदर परचेज और सेल. आपके पूरे महीने में एक ही ट्रांजेक्शन हुई है. अभिषेक ने आपको माल बेचा 1000 रुपया का, 180 रुपया जीएसटी, आपने उस 1000 रुपये के माल को 2000 में एक्सपोर्ट कर दिया. 2000 पे आपने टैक्स कैलकुलेट किया, 360 रुपीज आती है. आप जीएसटी 1 में भरोगे, 3B में जाओगे, पेबल 360 रुपीज, आईटीसी अभिषेक का बिल का 180 रुपया माइनस 180 रुपया जो डिफरेंस आएगा वो आपको कैश में पेमेंट करना है. वो आपको सिर्फ कैश में पेमेंट करना है. So what is happening is 180 you paid to Abhishek, 180 you paid while filing your GST or 3B. In totality, you have paid 360 rupees to the government, right? 360 रुपए आपके जेब से जो निकले थे वो गए हैं गवर्नमेंट के पास. अब ये क्या बोलता है कि जब आप 2000 रुपए का माल बेच दोगे, जब आप जीएसटी 1 भरोगे, टेबल 6A में आप बहुत ठीक से लिखोगे कि मैंने एक्सपोर्ट किया, ये मेरा बिल नंबर है, ये मेरा शिपिंग बिल नंबर है, ये मेरा ईजीएम डिटेल्स है, शिपिंग बिल जब मेरा शिप निकला वो सब डिटेल्स देने के बाद आप दिखाओगे मेरी 3B में ये अमाउंट है. सो कस्टम्स जो का माल शिप मूवमेंट किया या फ्लाइट से आपका गया, सो जो कस्टम्स है वो बैकहैंड में मिलाएगा कि हाँ जीएसटी 1 में, 3B में और शिपिंग बिल में सब कुछ एट पैरेलल है क्या. अगर सब कुछ एट पैरेलल है तो जिस दिन आपका शिपिंग बिल फाइल हुआ उसी दिन माना जाएगा कि आपने रिफंड फाइल कर लिया. और अगर सब कुछ मैच कर रहा हो 1, 3B और शिपिंग बिल का, आपको ऑटोमेटिक रिफंड सैंक्शन भी हो जाएगा. यू डोंट हैव टू अप्लाई. अदर देन दैट बाद बाकी सब में हमें आज के दिन में RFD-01 फाइल करके अप्लाई करना पड़ता है रिफंड्स. फ्रेंड्स माइंड इट, even export with payment of tax of service, even for export with payment of tax of service में भी हमें RFD-01 ही फाइल करना पड़ता है, right? Because उसका कोई shipping bill नहीं बनता. So I guess this slide was really very important and I have discussed in length. Any query on this slide I would love to answer or I will move forward. Any query on this slide? Okay, so I believe I can move forward, right? Okay, so time limit क्या है कि आप कब तक रिफंड्स फाइल कर सकते हो. सो इसमें बोला गया है कि आप 2 साल फ्रॉम द रेलिवेंट डेट आपको रिफंड फाइल करनी पड़ेगी. व्हाट इज रेलिवेंट डेट विल डिस्कस. सो ये क्या बोल रहा है कि आप इन जीएसटी regime any person claiming any of the above referred refunds
is required to make an application to the proper officer before expiry of 2 years from the relevant date in prescribed form and manner. However, the time limit of 2 years does not apply when you are filing refund of cash ledger, because cash ledger में जो पैसा है वो तो आप ही का है. इट इज एज गुड एज कि आपने अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है, राइट? तो उसको विड्रॉ करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है. और क्रेडिट लेजर से आप जो भी पैसा विड्रॉ करते हो वो उस पर्टिकुलर इवेंट के 2 महीना के अंदर, 2 साल के अंदर अंदर ही आपको रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, राइट? फ्रेंड्स, वन इंपॉर्टेंट थिंग, I have not narrated today case laws because topic थोड़ा सा लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स है, तो मैं केस लॉसेस को और बड़ा नहीं करना चाहता था. सो बट आई विल शेयर दिस in prescribed form and manner. If you can search, prescribed form and manner is discussed in various judgments, right? Prescribed in form and manner. So what does it say, prescribed form and manner? It simply says कि बॉस अभी आप एक्ट पढ़ रहे हो, whenever it is written prescribed form and manner, go and refer rules. Go and refer rules. That's it. That's it. Right? So इसका भी implication है पूरे रिफंड चैप्टर में, we'll discuss. फ्रेंड्स, आप देखो एक्ट जितना बड़ा है ना, उससे बहुत बड़ा रूल्स है. तो रूल्स को हम रेफर कर रहे हैं, तो क्यों रेफर कर रहे हैं? बिकॉज एक्ट में हर जगह ये लिखा हुआ है प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर, राइट? अपने आगे बढ़ते हैं. Okay, so this is what is a tabular presentation of relevant date, right? So अगर आपकी goods export होती है via sea और via air, ship से या flight से, so आप कब तक export आप कब तक refund claim कर सकते हो, right? Friends, आप refund claim कर सकते हो from 2 years from a date जिस दिन वो शिप या एयरप्लेन इंडिया छोड़ा था, राइट? इंडिया छोड़ा था. आप लोग क्या बोल रहे हो यार? मैंने बिल बनाया 13 जून को, मैंने क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को पकड़ा दिया, उसने प्रोसेस कराया, 10 दिन के अंदर उसने शिपिंग बिल निकाल दिया और सब हो गया, एवरीथिंग इज फाइन. अब माल निकलेगा, निकल जाएगा जिस दिन शिप रेडी होगा. तो हाउ वुड आई नो और कीप अ ट्रैक कि किस दिन शिप निकला? हाउ आई विल कीप अ ट्रैक कि 2 साल पूरे हो गए या होने वाले हैं? सो फ्रेंड्स, आपकी शिपिंग बिल के बाद में आइस गेट के पोर्टल में देयर इज समथिंग कॉल्ड EGM डिटेल्स. उसमें लिखा रहता है कि आपकी शिप या फ्लाइट इंडिया कब छोड़ी, कौन से डेट पे छोड़ी. सो गवर्नमेंट से उस दिन से 2 साल तक इज वो दैट इज अ रेलेवेंट डेट. फ्रॉम दैट 2 years you can claim the refunds pertaining to this transaction. Similarly, goods are exported out of India via land route. Good past the custom frontier, जिस डेट पे उस दिन रेलेवेंट डेट. Goods are exported out of India via post. So जिस दिन पोस्ट ऑफिस ने डिस्पैच किया. डीम्ड एक्सपोर्ट में GST अवन में जिस दिन आपने भर दिया. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जिस दिन पेमेंट आपको मिल गया. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अगेन जिस दिन आपने इनवॉइस बनाया, ओनली व्हेन द पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड इन एडवांस. रिफंड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ ऑर्डर और जजमेंट, जिस मेरे को हाई कोर्ट कोई ऑर्डर आ गया मेरे फेवर में और उस कारण से मुझे रिफंड मिल रहा है, तो जिस दिन ऑर्डर आया वो दैट डे इज अ रिलेवेंट डे. इन्वर्टेड रेट ड्यूटी, फ्रेंड्स, आई हैव टू डिस्कस हियर. इन्वर्टेड रेट ड्यूटी, द रिलेवेंट डेट इज ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉर द पीरियड सेक्शन फॉर द पीरियड एज पर सेक्शन 39. फ्रेंड्स, जुलाई 2017 का रेलिवेंट डेट क्या होगा? I would like participants to answer this question. What would be the relevant date for inverted rate duty for the period July 2017? Anyone else would like to try it? July 2017. Okay. So, ma'am, July 2017 due date was 20 of August 2017. 20 अगस्त 2017 आपका ड्यू डेट था. इफ यू सी देयर इज अ नोटिफिकेशन कि 31 मार्च 2019 तक
आप रिटर्न लगा दो तो मैं लेट फी माफ करूंगा, वो ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं किया था, राइट? So due date was not extended, only late fees was waived off. So due date still pertains to 20 अगस्त 2017। और अगर आपको जुलाई 17 का रिफंड क्लेम करना है इन्वर्टेड रेट का, तो 2 साल फ्रॉम 20 अगस्त 2017, which is expired now, it means you cannot file refunds for that particular period, right? So what I mean is due date and not the date. डेट आप अपने पास जो नोटिफिकेशन आया उसमें देखना पड़ेगा कि यार ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ है। अभी अगर मैं बात करूं फरवरी मार्च अप्रैल 2020 का, कोविड 19 के चक्कर में क्या ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ है? नो, ड्यू डेट हैज नेवर बीन एक्सटेंडेड। it is only relaxation in late fees, in penalty, a partial relaxation in interest विद सब्जेक्ट क्लॉज की आपको इस दिन के अंदर भरना है, तो दैट इज अ रिलैक्सेशन एंड नॉट अ ड्यू डेट। ड्यू डेट इज ऑलवेज 20th 20 or 22nd or 24th, whatever it is, right? So I humbly request to ensure that you keep a focus कि अगर आपके क्लाइंट्स के या आपके एसएससी के रिफंड्स फाइल करनी है तो यू फाइल अकॉर्डिंगली। Provisional payment, okay, rest we can leave. So that is really important to discuss in this slide. Okay, again very important slide. I guess someone is typing, I will wait. For inverted duty structure, do we file refund for each month separately? Okay, we'll discuss this in length. That how do you file, and it is you for answering this. No, you can file in a bulk. You can file in a bulk, and you can file for a financial year. You can cross the limit of financial year also now. आप 2 साल 3 साल की एक साथ फाइल कर सकते हो, बट अगर आप जुलाई 17 से लेकर मई 20 तक भरोगे, इफ यू फाइल फॉर लेट्स से जुलाई 17 टू मई 20, तो ऑफिसर बोलेगा कि भाई 2 साल का हिसाब कर लेते, आपको वो सारे साल की मिलेगी नहीं। इसका मतलब है अगर आप अभी बैठे हुए हो, तो क्योंकि कोविड 19 का एक सर्कुलर आया था, उन्होंने बोला था कि मार्च 20 तारीख के बाद से जो भी ड्यू डेट आ रही है उसको मैं 30 जून तक एक्सटेंड करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि फरवरी 2018 का ड्यू डेट था 20 मार्च 2018। 20 मार्च 2018 का 2 साल खत्म होता है 20 मार्च 2020। सो जो एक्सटेंड हो गया 30 जून तक। सो अगर अपने आज बात करें तो आप फरवरी 2018 से लेकर मई 2020 तक का रिफंड एक साथ फाइल कर सकते हो, राइट? we'll discuss this. So if I have shown same invoice twice in 18-19 and paid tax also twice, so can I claim refund now? So 18-19 आपको चेक करना पड़ेगा कौन से पीरियड में, फरवरी 2018 और के बाद है, तो you can file refund today, or else you cannot file a refund today, right? So we'll discuss this. The time limit we'll discuss with examples, right? So coming to a process or coming to a flow chart, this is important. Why important? If you have not experienced how to file a refund practically, so this will help you, right? So हमने देखा कि हमने RFD 01 में रिफंड फाइल किया। RFD 01 में we have applied for a refund online through a portal। सितंबर 2019 के बाद सब कुछ पोर्टल में मैंडेट हो गया। हमारा RFD 01 देखने के बाद 15 डेज के अंदर, 15 दिन के अंदर ऑफिसर को ऑप्शन 1 issue a RFD 02 or issue RFD 03. What is the difference? RFD 02 is acknowledgement कि whatever you have applied for is okay, is perfect. I am giving you an acknowledgement that we have received your application. Option 2, RFD 03, officer says कि भाई जो तुमने अप्लाई किया है मेरे अकॉर्डिंग को इसका पार्शियली या पूरा पूरी मिलना ही नहीं चाहिए। So I am issuing a deficiency memo
I'm issuing a deficiency memo that this claim is not perfect according to me. So earlier what used to have, we have to again go give the clarifications. But अब क्या हो गया है कि the moment officer issues a RFD 03, that is a deficiency memo, which is they are bound to issue within 15 days from application of RFD 01. मुझे वापस वो डेफिनेशन मेमो मिलने के बाद वापस मुझे RFD 01 ही भरना पड़ेगा. मैं क्लेरिफिकेशन खाली नहीं भर सकता. तो वो मेरे को डेफिनेशन मेमो में बता देगा कि भाई क्या गलती हुआ आपसे या उसके अकॉर्डिंग क्या गलत है. सो मुझे वापस उसको ठीक कैसे करूंगा, मुझे फ्रेश एप्लीकेशन RFD 01 वापस भरना पड़ेगा. राइट. सो दिस इज द चेंज. सो RFD 01 भरे, 02 मिल गया, ओके. 03 मिल गया, कोई बात नहीं, वापस 01 भर दीजिए. अब कमिंग टू 02 मिल जाए तो वापस आपने भरा, वापस आपको RFD 02 मिल गया. दैट इज एक्नॉलेजमेंट कि आपकी क्लेम जो आपने रिफंड क्लेम किया है वो फॉर्म मुझे मिल गई है. आई एम वर्किंग ऑन इट. अब RFD 02 एक्नॉलेजमेंट तो आप ऑफिसर ने मुझे दे दिया. अब ऑफिसर देखेगा कि हाँ अभिषेक जो रिफंड मांग रहा है इज परफेक्टली फाइन. इशू हिम अ रिफंड ऑर्डर RFD 06. issue him a refund order of RFD 06. और ऑफिसर might have a doubt कि यार ये अभिषेक ने क्रेडिट लिया है मोटर व्हीकल का, सो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं मिलनी चाहिए. या अभिषेक ने क्रेडिट लिया है मेंबरशिप टू अ क्लब का, मेरे अकॉर्डिंग क्रेडिट नहीं मिलनी चाहिए, और वो अब उस क्रेडिट का रिफंड मांग रहा है. तो क्रेडिट ही नहीं मिलनी चाहिए थी, क्रेडिट लेजर में जाना ही नहीं चाहिए था, तो रिफंड मिलता ही नहीं. सो द ऑफिसर माइट इशू मी अभिषेक अ शो कॉज नोटिस थ्रू SCN. they can issue a SCN through RFD 08. Okay. Friends, just hold on. Okay. So the officer can issue a show cause notice RFD 08 giving a show cause to Abhishek that why should not I disallow your credit on motor vehicle? Why should not I disallow your credit on club membership? So Abhishek, after receiving the RFD 08 show cause, जो show cause मुझे मिला ऑफिसर से, उस शो कॉज का मैं रिप्लाई दूंगा RFD 09 के 9 में. फॉर्मेट RFD 09. मुझे 15 दिन के अंदर वापस इनको रिप्लाई करना है कि सर देखो आपने जो मोटर व्हीकल पे क्वेश्चन उठाया ना, वो बस है, बस दैट इज अ 20 सीटर बस जो जाती है एक स्पॉट में, मेरे वर्कर्स को उठाती है और मेरे फैक्ट्री लेके जाती है. तो 17.5 में 13 सीटर के अबव सब अलाउ है, 13 सीटर के नीचे अलाउ नहीं है, तो वो अलाउड कर दीजिए. सेकेंड, आप जो क्लब बोल रहे हो ना, वो क्लब नाम में जरूर लिखा हुआ है, बट मैं लेदर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता हूँ. सो लेदर फेडरेशन क्लब एक क्लब है ऑल ओवर इंडिया. दैट इज अ बिजनेस क्लब, दैट इज अ बिजनेस एसोसिएशन where we cumulatively all the business owners of this particular industry take action for the industry, think of measures, talk to government as a body. So एक क्लब एक मेंबरशिप फीस आ रहा है, इट्स नॉट अ एंटरटेनमेंट क्लब. सो RFD 08 जो मुझे मिला उसका मैंने रिप्लाई किया RFD 09 में. राइट. सो ऑफिसर माइट बी वेरी मच सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मोटर व्हीकल कि हाँ यार 20 बस 20 सीटर बस तो हो ही सकता है, but he is not satisfied with the reply of the club. I have also given him the membership form, I have also given him the invoice in a scan copy, but वो बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं ये मैं तो इसका क्रेडिट अलाउ नहीं करूंगा, मैं तो इसका आपको रिफंड नहीं दूंगा. तो वो उतना का रिफंड रिजेक्ट कर देता है और बाद बाकी मुझे रिफंड दे देता है. सो व्हाट ही इज गिविंग अ partial rejection order and partial refund order. Both is to be issued under RFD 06. RFD 06. तो वो मेरे को रिजेक्शन ऑर्डर या फिर सैंक्शन ऑर्डर मेरे को दे देगा. राइट. तो फ्रेंड्स एक बार रिवाइज करते हैं. मैंने आपको RFD 01 दिया,
आपको मेरे एप्लीकेशन में दिक्कत लगी, आपने RFD03 से रिजेक्ट डेफिशिएंसी मेमो इशू कर दिया। मैंने वो डेफिशिएंसी मेमो पढ़ा, मुझे लगा हाँ गलती हुई है मेरे से, मैंने वापस RFD01 भरा, आपने बोला हाँ सब कुछ ठीक है, लो RFD02 पकड़ो। RFD02 आपने मुझे दे दिया, मैं शांति से बैठा हुआ हूँ। मेरी 50 इनवॉइस है जिसके अगेंस्ट में मैं क्रेडिट मांग रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं, आपने सब पास कर दी। 2 इनवॉइस में आपको दिक्कत थी, एक मेरी गाड़ी की क्रेडिट की और मेरी क्लब की मेंबरशिप की क्रेडिट की। दोनों के लिए आपने मुझे शो कॉज नोटिस इशू किया। मैंने आपने शो कॉज नोटिस इशू किया RFD08 में, मैंने RFD09 में आपको रिप्लाई वापस किया। आप मेरे रिप्लाई से सेटिस्फाइड पार्शियली हो, पार्शियली सेटिस्फाइड नहीं हो। आपने RFD09 पढ़ के मेरा रिफंड ऑर्डर निकाल दिया RFD06 में आपने ऑर्डर निकाल दिया। अब RFD06 जब मुझे मिल गया तो क्या रिफंड आ गया? नहीं सर, रिफंड तो तभी आता है जब मेरे बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है, तब तो रिफंड नहीं आया। सो नाउ RFD06 मुझे देने के बाद आपको पेमेंट ऑर्डर इशू करना पड़ेगा, पेमेंट एडवाइस इशू करनी पड़ेगी RFD05 में। RFD05 में जब तक प्रॉपर ऑफिसर RFD05 इशू नहीं करता, वो पेमेंट रिलीज नहीं होती, राइट। एंड अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ये रिफंड आया 1 करोड़ रुपए का, और मेरा कोई केस चल रहा है जिसका डिमांड 1.25 करोड़ रुपया का है, और प्रोवाइडेड मैंने उस केस के अगेंस्ट में अपील फाइल नहीं की, आई हैव नॉट फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट दैट केस, इट मीन्स आई एम एक्सेप्टिंग दैट डिमांड। तो गवर्नमेंट इस 1 करोड़ का जो रिफंड पास हो गया था उसको उस 1.25 करोड़ से सेट ऑफ कर देगा एंड इशू करेगा वापस इशुएंस ऑफ एडजस्टमेंट एडवाइस। तो RFD07 के थ्रू मुझे एक एडजस्टमेंट एडवाइस दे देगा। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज वेदर आई हैव मेड यू द फ्लो ऑफ फॉर्म्स और फ्लो ऑफ प्रोसेस वेरी क्लियर। आई वुड लाइक टू हैव द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स कि मैंने जो भी आपको फ्लो बताया ये आपको पूरी क्लियर हो गई है। ओके ओके ओके, perfect. Sir, I have purposefully removed RFD04. Thank you for pointing out. I have put it in a slide after when we talk about goods and service for export, because RFD4 is a provisional adjustment, provisional sanction, that is 90%, which is only relevant when you export, when you have an export of goods or service. So friends, what sir is talking about is there is a concept of provisional refund, that is 90% of the total refund is a provisional refund which is sanctioned, and 10% is to be scrutinized and then hand over to you. So sir, I would like to mention two things. I've covered in a later slide. First, this is very restricted only to exports of goods and service only. Second, practically this only happened for 2 months in 2017-18. उसके बाद मेरे नॉलेज में तो पूरे इंडिया में प्रोविजनल एडजस्टमेंट वाला काम नहीं हो रहा है, प्रोविजनल रिफंड वाला काम नहीं हो रहा है. Officer is sitting and sanctioning us 100% refunds. So I have not put it in this slide purposefully. I have kept it for knowledge sharing in a particular slide when we discuss refund of tax under exports, right? So let's move forward. Okay, so now we are talking about excess balance in electronic cash ledger, right? So लॉ में क्या लिखा हुआ है? लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आपको कैश लेजर में बैलेंस होना एक्स्ट्रा तो आप रिटर्न भरते वक्त ही रिफंड क्लेम कर लो. If you have an excess balance in your cash ledger, kindly claim it. Kindly claim it while filing the return only. Friends, I would like to all of you to answer
क्या हमें रिटर्न भरने में कभी भी ये ऑप्शन मिलता है कहीं पर भी? हम अभी कौन सा रिटर्न भर रहे हैं? हम अभी जीएसटीआर 3 भर रहे हैं। एज अ रिटर्न वी आर फाइलिंग जीएसटीआर 3B। तो जब हम जीएसटीआर 3B भर रहे हैं, क्या हमें 3B में कहीं पर भी ऑप्शन मिलता है कि यू कैन क्लेम अ रिफंड ऑफ योर एक्स्ट्रा कैश लेजर? So there is no option altogether. There is no option altogether, right? So let's go circular wise. 24/24/2017 एक सर्कुलर आया था 21 दिसंबर 2017 को। वो बोला कि 3 इफेक्टिव नहीं है, so the refund cannot be fully automatic. Therefore, one is to apply through RFD 01A. ये फॉर्म नया है, ये फॉर्म दूसरा है। This is RFD 01A. उसके बाद 26 सितंबर 2019 को फॉर्म आया RFD 01 जो था हमेशा से। बोला गया कि आप कैश लेजर का भी रिफंड RFD 01 से ही करो, RFD 01 से ही करो। इसकी पूरी प्रोसेस इन्होंने एक सर्कुलर में मेंशन कर दी है। फ्रेंड, repeatedly in today's session, this circular 125/44 will be discussed in length. It's a master circular, right? So we will discuss this in length. So ultimately to brief up, अगर आपकी कैश लेजर में बैलेंस पड़ी हुई है, you have to file RFD 01 and claim the refund. 1, 2. फ्रेंड, कैश लेजर में हमारा कौन कौन से सिनेरियो में पैसा आ जाता है जो हमें रिफंड निकालना पड़े? एक, हम कैश डिपॉजिट करते हैं। सेकंड, हम किसी को सप्लाई कर रहे हैं जो गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो वो जब हमें पेमेंट कर रहा हो तो वो हमारा टीडीएस काट के पेमेंट करता है। तो जब वो हमारा टीडीएस काटता है और जब हम टीडीएस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो टीडीएस हमारे कैश लेजर में आता है। सिमिलरली, इफ यू आर सेलिंग एनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाला बंदा है वो टीसीएस काटता है हमारा। तो वो जो टीसीएस जो हम अगर अप्रूव करते हैं तो वो हमारे कैश लेजर में आता है। इट माइट बी पॉसिबल कि वो टीडीएस और टीसीएस जो हमारे कैश लेजर में आया है माइट नॉट बी, हमें वो कैश का दरकार ही नहीं हो, हमारा क्रेडिट लेजर में इतना बैलेंस पड़ा हुआ होता है कि वो सेट ऑफ हो जाता है। सो इसीलिए यू कैन ऑलवेज क्लेम अ रिफंड ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस इफ इट इज क्रेडिटेड इन योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, राइट?